No, no. No, sir. No. Now? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next concept is, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next concept is lambda function. अभी तो हमने क्या किया था? We have created user defined functions. So what we have done in actually in that user defined function, जो भी आपने अभी तक programs किए, what we have done? Hello. We have used the def keyword. Def keyword. Okay, we have used the def keyword followed by the function name, followed by the parenthesis. In that parenthesis, we have mentioned the parameters, then followed by colon. Then we have written a block of the statements which are inside that function. Okay, and then we are calling that function by passing the values of that specific function. Okay. Now next one is what? Next important concept with respect to Python program is lambda function, और इसे बोलते हैं anonymous function. Okay. So lambda function is a function usually not more than one line. Generally एक ही लाइन में वो खत्म होता है. Okay. सिंगल लाइन में हम लिखते हैं, सारी चीजें उसमें आती है. Then parameters कितने हैं, उसका expression क्या होता है. All things will be written in single line. And lambda keyword is used to create such an anonymous function. क्या use करते हैं वहाँ पे? Lambda. Hello? Lambda keyword we have to use. That is a word which is given by reserved word which is given by Python libraries. Then def keyword is not used to create an anonymous function. Okay. Lambda function use create करने के लिए we don't require any def keyword. Yes or no? वहाँ उसकी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं? What we are using? Def keyword use करें sir. नहीं. Lambda. Instead of def keyword, what you have to use? Yes, lambda. Okay. Lambda, तो यहाँ हाँ, पे yes. एक example दिया है define lambda function. यहाँ पे r is equal to lambda. Then followed by the parameters x comma y. These are the two parameters or arguments we can call it as colon. तो colon के बाद आपको क्या करना है? Expression लिखना है. जो भी expression आपको execute करना है depending upon the as per your requirement. उसके बाद मैंने function को call किया, उसमें दो values pass किए. Okay. Okay. So all of you clear with this? Yes, sir. Okay. अभी इस एग्जांपल डायरेक्टली हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करके देखेंगे एक एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू वन एग्जांपल आई विल टेक लैम्बडा फंक्शन का. ओके. फॉर एग्जांपल सम का एग्जांपल लेते हैं. सम इक्वल टू लैम्बडा. देखो यहाँ पे वेदर दैट फॉन्ट इज चेंज. ओके. व्हाई? एनीबॉडी? Keyword. यस, लैम्बडा इज व्हाट? Keyword. कीवर्ड. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है? टेल मी व्हाट आई हैव डन हियर. Addition of two numbers. एडिशन ऑफ टू नंबर्स. उसके लिए मैंने क्या किया? एक वेरिएबल लिया है सम नाम का. ओके. देन व्हाट आई हैव डन, सम इज इक्वल टू लैम्बडा देन x comma y. These are two parameters. Okay, yes or no? Yes, sir. Hello. Then after parameter what you have to give compulsory? Expression. No, expression के पहले क्या दिया है मैंने? What I have Colon. written? Yes, colon. Then what I have written? Expression. What I have written? Expression. तो यही हम प्रॉब्लम नॉर्मली किससे करते थे? फॉर एग्जांपल डेफ कीवर्ड यूज करते. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? डेफ फंक्शन का नाम, देन ब्रैकेट ओपन, देन कोलन, इनसाइड दैट यू हैव टू डू एम. तो ये कोड कितने लाइन में हो गया? ये इंस्टेड ऑफ 2 और 3 लाइंस में कितने लाइन में किया हमने ये कोड? ओनली सिंगल लाइन. अभी इसको क्या करना है? Simply what you have to write? Print function. And in that print function, for example, I have written one message that is sum equal to, okay, and then comma करके क्या करना है यहाँ पे? अभी what you have to do? Sum में parameter. Yes, simply you have to pass the parameter inside that sum. For example, I have passed the parameter 3 comma 5. So it will give the answer, yes or no? What will the answer? 8. 8. Yes. Clear है? All of you clear with this? Yes, sir. Yes, Yes or no? अरे यही हम इससे ये क्या हो गया हमारा? लैम्बडा फंक्शन. What is there? The function lambda function. और यही कोड हम जब when we are doing with respect to def keyword, what you have to use? ऐसे करते हैं ना, def sum in bracket x comma y. Okay. Colon. Then colon. Then return
ऐसे करते रिटर्न कर सकते हैं ना यहाँ पे, रिटर्न x प्लस y, ऐसे ही करते हैं ना. देन व्हाट यू Yes, हैव टू sir. डू, Yes, sir. प्रिंट Print what you have to do, Print sum. sum of in bracket 3 comma 5. Okay, then we will see the output. Same output आएगा ना, yes or no? Yes, sir. Sir. Yes. Clear है? Yes. So all of you clear with the lambda function, how to use the lambda function without using the def keyword, normal functions. Okay. Another एक example देखेंगे हम simple. अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, lambda function as a parameter pass करेंगे हम. यहाँ पे क्या करेंगे, lambda function as a parameter, किसमें, normal function में. Getting what I mean to say? Yes or no? Yes, sir. क्या करने वाले हैं हम अभी, what we have to do? Hello. Anybody? We are using another. Yes, we are using one def function. We are creating function. Okay. For example, function name is small, and the parameters for this function is, for example, I have taken a comma b. Okay. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, if a less than b. Okay. Followed by colon. तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे हम, what we have to return, क्या करेंगे, ए ना, ओके, ए या कुछ भी, आपको ऐसे हमें देखना है सिर्फ. ओके, एल्स पर रिटर्न क्या करेंगे, बी. ओके, ये हमने नॉर्मल कोड किया. ओके, ये क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया. यस और नो, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. नाउ वी विल डू वन थिंग. ओके, we take one variable, and in that variable we are writing some logic with respect to lambda. अभी lambda में क्या कर रहा हूँ देखो, x comma y, okay, colon x plus y. Okay, and then I have taken one another, for example, I will difference is equal to, I will take one lambda x comma y colon x minus y. Okay, I will pass this parameter as a parameter for what, argument for what, किसको पास करेंगे अभी ये हम, स्मॉल को. yes, small को. yes. So यहाँ पे मैंने क्या किया, I will do one thing, print f what I have written. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या पास करूँगा, small. ओके, स्मॉल फंक्शन है, करेक्ट है ना. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सम. ओके, पैरामीटर पास करें मतलब क्या करना, मतलब सम इन ब्रैकेट, व्हाट वी हैव टू गिव हियर नाउ, X और Y की वैल्यूज. यस, x और y की वैल्यूज. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन वन वैल्यू 3,5. ओके, देन व्हाट नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, Different. Then give Yes. the values inside this. so what you have done, dif, okay, in bracket, what you have to give here now, values of X and Y. X and Y. 2 comma 4. Anything. Okay, clear है. Yes, sir. Okay, Sir, so what printf will the output, what is the output we will get, यहाँ पे printf हो गया गलती से. yes, yeah, yes. So what is the output we will get here, -2. -2. -2. 8 and minus 2. 8 and minus 8 2. and minus 2. anybody, -2. minus 2. A first A. Only minus 2. okay, we will check. वरचा वाला. yes, -2 is the correct answer. yes or no, Yes. why, Yes. अभी देखो यहाँ पे सिंपल है, मैंने क्या किया है, पहले आई हैव रिटन वन फंक्शन. ओके, स्मॉल नाम का एक फंक्शन किया है. स्मॉल नाम के फंक्शन में क्या लॉजिक लिखा है हमने, व्हाट इज द लॉजिक इनसाइड दैट स्मॉल फंक्शन, एनीबॉडी. Sir, inside we are saying which of the following is the smallest number inside small. यस, सिंपली हमने क्या किया, दो पैरामीटर लिए ए और बी, और चेक कर रहे हैं विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, तो ए लेस देन बी होगा तो रिटर्न ए, और एल्स क्या रिटर्न होगा, बी. यस और नो, क्लियर है. उसके बाद सम एक वेरिएबल है, उसमें क्या किया, लैम्बडा एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई. डिफरेंस एक वेरिएबल है, लैम्बडा एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई. अभी देखो स्मॉल के अंदर मैंने दो पैरामीटर, मतलब यहाँ पे ए क्या हो गया, टेल मी व्हाट इज ए हियर,
Sum of three Sum. Sum of And the what is B numbers here? is the What is B here? Difference. the difference अभी between the two ये numbers. सम है, सम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. पहले सम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, तो सम के फंक्शन में x की वैल्यू कितनी है? 3. 3. Here, you have to check Three. here. Okay, 3. And what is the value of y? 5. 5. 5. तो यहाँ पे क्या हो Five. गया? 3 plus 5 Eight. कितना हो गया? 8. 8. Okay, all of it clear? 8. Okay. Yes, sir. Now, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? E. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's why I alert the meeting. Okay, I will again presenting. Screen is visible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what is the value of a is here now? What is the value of argument of parameter a is? 8. यहाँ पे हमें डिफरेंस में जाएंगे. डिफरेंस में हमने क्या लिखा है? x, y. x की वैल्यू कितनी? 2. 2 minus 4 minus 2. अभी यहाँ पे 8 और minus 2 किसकी होगी? b. तो 8 और minus 2 का यहाँ पे कंपैरिजन होगा. So what will be written? Minus 2. So all of you clear how to pass the argument lambda function as an argument to the function, a normal function? All of you clear with this? Yes. Yes, sir. All okay? Clear है? Yes or no? Hello. Yes, sir. So anybody can tell me the what is the lambda function? Anybody can tell me the what is lambda function? अभी बताया ना मैंने. Sir, हाँ. it is a function. Okay.
which we can use without def keyword. Okay. And in one line, That we are writing the code in single line, yes or no? That all things will be in single line, yes or no? क्या separately लिख सकते हैं इसमें? Hello, can we write the separately more than 2 lines in a single lambda function? No. Hello, no. So that we have to write in single line only. Okay. So all of you clear with this? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. So we will move forward. अभी ये हो गया lambda function. We will move forward with respect to recursive function. So next concept is what? Recursive concept. Okay. So anybody can tell me what is recursive function? Anybody? जिनको हुआ है वो they can. I will tell you, but still those who know the concept regarding recursive function, we'll start with recursive function. Anybody? You can. A function that calls itself is known as. Yes, that is a correct definition. Okay, the function that calls itself, that function is called as, that type of functions are called as what? Hello, recursive function. Yes or no? All of you clear with the definition of a recursive function? Hello. Yes. The function which call itself, that type of functions are called as what? Recursive function. वो example के through directly देखेंगे. So हमने अभी I have given one problem regarding problem statement regarding factorial of number. किया था ना हमने? Yes or no? Yes, sir. Factorial of number का कोड किया था ना by using for loop. Yes or no? Yes, sir. So वही हम क्या करेंगे? We will see that same code by using recursive function. For example, I have written one function that name is fact. Okay, fact नाम का एक function यहाँ पे करूँगा. Okay, and the parameter for that fact function is what? N. That is a number that if basic condition क्या होगी when that factorial is 1? Tell me. Greater than 0. Return 1. Return 1. N is equal to 1 or n equal to 0. Okay. 0. So, then what? Return 1 na? Yes or no? Yes, sir. Return 1. Yes. Now else part में हम क्या करेंगे? We will write the logic for that specific. अभी यहाँ पे return क्या करेंगे हम? We will return what? Tell me. N into fact of n minus 1. N star fact n minus 1. N into N minus 1. Fact of n fact of N minus 1. करेक्ट ना? Yes or no? क्या चाहिए हमें? Yes. रिकर्सिव फंक्शन के लिए मतलब फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? n into n minus 1 चाहिए ना? Yes or no? Yes, Hello? sir. What we required? Yes, N sir. into n minus 1. So what we have called again? N into fact of n minus 1. अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? We will take the value of n ना? So what we have to write? Anybody can tell me the instruction that we have to write here? Input. int In bracket input. input. the number. Okay. Enter the value Enter of the n. number. Enter the value of n or enter the number. Enter value of n. Okay. All of you clear with this? Yes. Yes or no? अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? Print in bracket the factorial, the fact equal. Simply ऐसे लिखेंगे. Okay. Then comma करके क्या लिखेंगे हम? What we have to write? We have to call the function. ना? कैसे लिखेंगे? Fact of n. fact n. Fact n. Okay. In bracket n. Yes or no? Clear? All of you clear with this? Yes, sir. Yeah. That I have not. For example, I have entered value of fact 1 हो गया. क्यों 1 हो गया यहाँ पे? Directly def function में क्या लिखा था हमने? N is equal to 1 or n is equal to 0. Then it will what? It will give what? Return 1. Yes.
120. Clear है? 120. All of you clear with this? So anybody can explain how it will be work? Recursive function कैसे work हो रहा है? Anybody? Hello. Mukesh is there? Yes, sir. हाँ, can you tell me how this will be work? Sir, first we call the fact function with value, the input we हाँ, for example 5. हाँ, yes. Then find, next, then fact how will iterations will be performed? हाँ, yes. and then Next. next it checks the condition if it is 1 or 0. Yes, correct. Then if it's not 1 or 0, then it just calls n into factorial Yes. of So n minus n की 1. current value कितनी है? 5, 5. Fact of in bracket क्या होगा? 4. 4. तो again 4 check करेगा, yes or no? Whether that is check? Yes, sir. Yes. तो वो नहीं है तो n into क्या होगा? 4. मतलब क्या होगा current value? क्या होगा? 5 into Next iteration में ना yes iteration 5 into 4 के बाद क्या होगा? into fact of yes. Next क्या होगा? फिर से कंडीशन चेक करेगा, Yes. वो 2 आता है इसलिए फिर फैक्ट ऑफ 2 Yes. करें, उसके बाद 1 के लिए होगा, उसके बाद 1 के बाद क्या होगा? रिटर्न 1. Return 1. Yes. So what is the answer? We'll get answer what? 120. 4 into 2 into 1. So all of you clear with this? What is recursive function? Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay. So can you do the program right now write a program to print a Fibonacci series? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is a Fibonacci series? Can you anyone tell me what is a Fibonacci series? क्या होता है Fibonacci series? Yes, sir. हाँ, anybody? Number 1. Yes, first number क्या होता है? For example, 1. 1. तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके प्रीवियस वाला नंबर लेंगे ना? Yes, प्रीवियस वाला नंबर क्या होता है? 0. 0 plus 1 1. तो 1 plus 1 2. 2 plus 2 के बिफोर क्या होता है? पहला वाला नंबर क्या होता है? 1. 2 plus 1 3. 3 के प्रीवियस वाला नंबर क्या है? 2. 2 plus 3 5. 5 के प्रीवियस वाला नंबर क्या है? मतलब आपकी फिबोनाची सीरीज कैसी दिखेगी आपको? Anybody can tell me? 3. Tell me. 1. उसके बाद 1 1 2 3 5 8 1 1 2 3 5 8 11 likewise. Okay. सर 11 Yes नहीं, or no? 11 नहीं 13 आएगा. 13 के बाद 21 ना? 21. Yes. सर 8 की जगह likewise. 9 आ गई, हाँ? 8 की जगह 9 आएगा ना सर. कैसे 9 आएगा? देखो correct. 1 plus 1 2 2 plus 1 प्रीवियस चेक करना है सिंपली. 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 3 8 8 plus 5 13 13 plus 8 21. हाँ. तो अभी क्या करना है आपको? n नंबर मतलब आप जो भी नंबर डालेंगे फर्स्ट 5 नंबर चाहिए मुझे. तो फर्स्ट 5 नंबर में क्या डिस्प्ले होगा? आई वांट फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज. सो व्हाट विल बी डिस्प्ले? क्या डिस्प्ले होगा? 1 1 2 3 5 ना? यस और नो? हेलो? Yes. ओके. इफ आई रिटर्न 10 n की वैल्यू 10 दी मैंने यहाँ पे. सो व्हाट विल रिटर्न? क्या आंसर होगा? If n value is 10, how many numbers will you display from that Fibonacci series? Hello? 6. अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट 10 नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक अ वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 10. तो जब 5 डालेंगे तो फर्स्ट 5 नंबर्स वहां पे डिस्प्ले होंगे. तो लॉजिक लिखो उसके लिए, और उसके लिए आपको क्या यूज करना है? रिकर्सिव फंक्शन. डू इट राइट नाउ, वी विल डिस्कस इट. करो जल्दी, चलो डू इट फास्ट. हाँ, याद है ना स्टार्टिंग में. 0 की जरूरत नहीं अपन वहां पे डिस्प्ले करने की. अच्छा ठीक. नो नीड ना. सिंपली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, टेल मी. रिकर्सिव का मतलब क्या है मैम सर? अरे देखो यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, ये फैक्ट को मैंने उसी फंक्शन के अंदर कॉल किया ना. यस और नो? यस. तो सेम फंक्शन को सेम फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन. सिंपल है. क्लियर है? यस और नो? यस सर.
मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है हर टाइम, यू कैन यूज एज पर योर, मतलब जैसे कि मैंने ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने किसके साथ किया था, नॉर्मल फॉर लूप से भी किया था ना, यस और नो? हाँ, बट यू कैन, ये रिकर्सिव फंक्शन का कंसेप्ट है, या ऐसा कंसेप्ट होता है, इसलिए हम क्या करें उसको देख रहे हैं, यू कैन यूज वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन आल्सो। ओके, तो उसमें हमने क्या किया है, जैसे कि फैक्ट के प्रोग्राम में हम उसको कर सकते हैं, वह सेम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं दोबारा उसी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखो फैक्ट का फंक्शन हमने कॉल किया, फंक्शन फैक्ट किया, रिटर्न में फैक्ट n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन, क्योंकि ये लॉजिक किसका है, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन, किसका लॉजिक है ये, फैक्टोरियल का ना, यस और नो? हाँ, तो उसके लिए मैंने उसको वहां पे कॉल किया है, क्लियर है, यस और नो? द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड दैट्स व्हाट रिकर्सिव फंक्शन। अभी यही सेम आप क्या करो, फिबोनाची के लिए करो, तो फिबोनाची के लिए कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या रिटर्न करना पड़ेगा, सिंपल है, 2 लाइन का कोड है, 3 लाइन का कोड है। सर हाँ सर हमें वो नंबर और उसके पीछे वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा। यस, सिंपल, वो नंबर और उसके पीछे वाला नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। सो राइट डाउन द लॉजिक फर्स्ट, क्रिएट अ फिबोनाची। Can we write it as n in plus n plus 1? डू योरसेल्फ, चेक करो आंसर आ रहा है क्या आपका, ट्राई इट योरसेल्फ ऑन पेपर, राइट द लॉजिक, टेक ए इनपुट, टेस्ट द इनपुट एंड चेक द आउटपुट फॉर दैट इनपुट, यस और नो? करना ही पड़ेगा आपको, लॉजिक तो बताया मैंने क्या करना है आपको, यस और नो? Yes. यस, डू इट। Sir, हाँ, सर done, sir. यस कैन यू शेयर योर स्क्रीन? हेलो हेलो, किसका हुआ है, Yes, sir. किसका हुआ है, हेलो? सर हो गया, पर एक्चुअली मैंने वो लैपटॉप पे किया है और मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ लेक्चर। सो लैपटॉप पे स्क्रीन नहीं शेयर नहीं हो सकता, ठीक है, सिंपली यू कैन शो द कोड, रन करके मत दिखाओ, सिंपली यू कैन एक्सप्लेन लॉजिक। Okay, sir. So first, define Fibonacci n. Then Yes. There will be 4 conditions. First, if n is less than 0, then it is an then print it is incorrect input. Then we have to use elif. If elif n double equal to 0, then return 0. Elif n is equal to 1, return 1. Else return Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2. Yes, correct. And then next what you are written, हो जाएगा इसने इतने से, हेलो Sir, print Fibonacci and the number which we are going to input. whether this is work, लॉजिक बराबर है अभी तक का, पर what we require आना हो जाएगा इससे, नहीं होगा। हाँ सर, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? और लूप यूज करना पड़ेगा एक। हाँ, क्योंकि क्या होगा इससे, what will happen, सर वो एक ही नंबर के लिए दिखाएगा, क्योंकि हाँ वो सिंपल एक n नंबर, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट n नंबर चाहिए, वी वांट व्हाट, फर्स्ट n नंबर्स, यस और नो? तो n नंबर है मतलब क्या होगा, आपको फॉर i इन रेंज n तक जाना पड़ेगा ना, यस और नो? यस सर, ओके, यस और नो? यस हेलो सर, क्या yes sir. अभिषेक, यू कैन एक्सप्लेन, अभिषेक? Yes. यू कैन, अभिषेक। अथर्व ने जो लॉजिक बताया वो सिंपल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट ही हैव नॉट यूज द स्पेसिफिक दैट फॉर लूप, यस टेल मी। स्क्रीन इज that is correct. If n is equal to 0, return 0. If n is equal to 1, return 1. Else return fibo of n minus 1 and plus fibo of n minus 2. Then what you are done next? x equals to 5 or integer input you can take. You can take an integer input. Yes, take. Okay. If So आपने ये आपका ये प्रोग्राम किसके लिए होगा, सिर्फ for 5 numbers हो, first 5 number will be displayed, yes or no? yes sir, yes Yes. Okay. So next, if x less than negative number, yes, so please enter the positive number. Yes, correct, that is correct. Okay, then next else
and then we are looping through 1 to x plus 1. Yes. So print f of I Yes. means तो for, क्या होगा for पहले? phi, हाँ, पहले क्या होगा? I की वैल्यू कितनी होगी? पहली 1 होगी ना, yes or no? yes sir. सो फिबो ऑफ 1, तो अंदर जाएगा 1 चेक करेगा वो, तो रिटर्न क्या करेगा वो? 1 ना? 1. फर्स्ट टाइम क्या Yes, रिटर्न sir. करेगा? 1 करेगा। अभी I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, yes or no? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गेटिंग? I की वैल्यू 1 के बाद कितना होगा? 2, yes or no? 2. ओके, 2 के लिए अभी फिबो ऑफ Yes. 2, फिबो ऑफ 2 मतलब अंदर जाएगा, तो पहले दो कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं, yes or no? yes or no? Yes sir. तो फिबो ऑफ एल्स पार्ट में रिटर्न में क्या लिखा है? n की वैल्यू कितनी है अभी? 2, 2 माइनस 1 1 प्लस And n माइनस क्या लिखा है? 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 1 ना, yes or no? yes sir. फिबो ऑफ 1 कितना हो गया? 1 हो गया। सेकंड नंबर भी क्या डिस्प्ले होगा हमारा? 1 ना? 1. यस। अभी n की वैल्यू कितनी? I की वैल्यू कितनी होगी? 2 के बाद 3, अगेन अंदर जाएगा। अभी फिबो ऑफ 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 1 2 माइनस कितना हो गया यहाँ पे? 2 Hello? आएगा sir. 2 आएगा ना, yes or no? Yes sir. क्लियर है? हाँ. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? व्हाट इज वैल्यू? Through हेलो, 3 आएगी. 3 होगा, यस। 3 का वैल्यू कैसे होगा? व्हाट इज द लॉजिक? 2 plus 1 3, then 3 plus 2, then 5, and then so on. यस, सो ऑन। तो लूप कब स्टॉप होगा हमारा? Last व्हेन आवर वैल्यू इज 5 और 6 Yes. 6 होगी ना? हाँ, 6 हमें पहले वहां पे x प्लस 1 इसके लिखा है वहां पे, ओके। तो वैल्यू जब वहां पे जब आप क्या होगा? x प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6, तो 6 के लिए हमारा लूप क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। सो विल गेट द फर्स्ट 5 वैल्यू, दैट इज 1 1 2 3 5, yes or no? All of you clear? Yes, sir. Yes, sir. All of you clear with this logic of how to display the Fibonacci series using recursive function? Yes or no? All of you clear? Okay. Yes, Now sir. you have to do one homework as a homework regarding recursive function. Write a program. Write down the title of program. Write a program. Write a program. To calculate GCD using recursive function. To calculate GCD using recursive function. What is GCD? Greatest common divisor. Yes. So that you have to implement. जो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? What you have to do? Take 2 number ना? 2 नंबर लेने पड़ेंगे ना? Yes or no? हाँ. और उसका आपको GCD निकालना पड़ेगा. Yes. So for that purpose you have to not use normal logic. You have to use recursive function. Normal logic से भी होगा, but you have to do it by using recursive function. And that we will discuss in next lecture. So clear है recursive function? सबको समझ में आया सबको? All of you clear with this? Yes, sir. The function which calls itself, that is called as what? recursive function. Recursive function. Okay. So we will move forward with respect to the topics of that function. Next होता है simple topic actually वो. Screen visible है सबको? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. So we'll move forward. Documentation string. Documentation. Sorry से बोलते हैं doc string. Strings. Okay. So what is a comment? Anybody? जो हमने already देखा था. So the statements which start from the hash. हाँ, that is comment the non-executable part of. वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? फंक्शन में हम doc string यूज करते हैं. उसे this is one of the comments. Similar that of doc string are serve the same purpose of that of comments. जैसे वहाँ पे कैसे नॉर्मल प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? कमेंट लिख सकते हैं by using डबल कोट्स, और डबल कोट से स्टार्ट और डबल कोट से एंड, और मल्टीपल होगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए 3 times डबल कोट्स एंड 3 times डबल कोट से हम उसको एंड करेंगे. ओके. सो यहाँ पे ओके एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखेंगे. डेफ
और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉक अंडरस्कोर डॉक कीवर्ड से। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये I will use a doc string, that is comment the program test print message. It will display for example message लिया hello world का प्रोग्राम देखेंगे hello world। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम, what you have to call with respect to function? Doc string. Yes, this is called as doc string. Okay, print in bracket hello world. Okay, then print in bracket क्या करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर। फंक्शन को कॉल करने की डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ना? Yes. Yes. Okay. Now we will do one thing. अभी मुझे क्या करना है, वो कमेंट भी डिस्प्ले करना है। I want to print the comment of that doc string. तो उसके लिए doc नाम का एक फंक्शन है, फंक्शन और एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम while we are calling the function। तो उसके लिए हम print फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया प्रिंट फंक्शन का नाम func dot underscore doc doc। So what will be the output now? Tell me. The program just The print comment message. will also be printed. क्या होगा अभी इससे, क्या होगा? रो कमेंट डिस्प्ले होगा। Which comment? The program just print message and it will display here. Yes. Clear है? Yes or no? Yes sir. func एक्चुअली यहाँ पे हुआ है क्या डिस्प्ले? नहीं हुआ है। मैसेज कमेंट डिस्प्ले हुआ ना? Yes or no? Yes sir. Whether we are display the comment. Clear है? Yes or no? Yes sir. So doc string is used for what? It is the same as that of what? Anybody? Hello? It is same as Comment. normal comments which are used in what? Normal program. Yes or no? So यहाँ पे simply हम क्या कर रहे हैं, उसको फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं हम उसको कमेंट बोल रहे हैं, पर उसके लिए उन्होंने वर्ड दिया है, सेपरेट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स। ओके, सो if a question will be there, explain documentation string with respect to functions। तो आपको क्या करना है, you have to define one function and write down the message inside that specific or comment inside that specific function and display it by using doc or doc नहीं किया तो भी चलेगा। okay, but display that specific comment or attribute क्या use करते हैं हम, what is the attribute to display the comment of that specific function? Hello? Underscore doc underscore। Yes, underscore। So MCQ based question में ये question definitely होगा। Okay, so what is the question? The doc string specified can be accessed through dash attribute of the function. Which attribute? Underscore doc underscore। All of it? वो single underscore नहीं, how many underscore are there? 2 underscore sir. 2 underscore। यहाँ पे मैंने single use किया, so what will happen? What will happen? Error. Yes. Clear है? क्या आया वहां पे? What is the error I will get here? Function object has no attribute. What? Underscore doc underscore। All of you clear? तो यहाँ पे गलती से कैसे होता है? When you are वहां पे ऑप्शन में single underscore भी होगा, so that is not the correct option। The correct option is what? To display to access the comment or the part that we have doc string specified in that specific function, what we have to use? Underscore doc। Clear है सबको? Documentation string? Yes or no? All of you clear with this? Okay.
सो रिकर्सिव फंक्शन समझ में आया सबको? देन लैम्बडा फंक्शन, Yes, sir. लैम्बडा फंक्शन, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट अभी इसमें है मॉड्यूल्स एंड पैकेज। अभी मॉड्यूल्स और पैकेज में सिंपल कुछ सिंपल मॉड्यूल्स देखने वाले। पैकेजेस में सिंपली थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज देयर, एक्चुअली पैकेजेस एडवांस पार्ट इज इन योर डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। सो वहां पे आप देखेंगे एक्चुअल पैकेजेस डिटेल में, बट एज अ introductory part we will see that topic, what is packages, what is modules, in next few lectures, okay. So all of you clear with this recursive function, lambda function, documentation string, clear hai? Okay, lambda function, anybody can revise lambda function? Anybody can revise the lambda function? Anybody? Sir, we can use the lambda function instead of def function Okay. to reduce the code or written in the short. Okay, yes. Again, what is the advantage? You can use whether we can exam में MCQ में होगा true or false में lambda function can be passed as an argument for normal function, true or false? True. Yes, it is true. Okay. Def keyword is used with lambda function, true or false? False. This type के questions आपको याद रखना है with respect to lambda, and which keyword we have to use? Lambda keyword. Yes or no? Yes, sir. क्लियर है? उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन का सिंपल आपको कोड दिया जाएगा, एंड व्हाट इज द आउटपुट फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शन। तो जनरली क्या होता है, ये 3-4 फिक्स होते हैं, फिबोनाची सीरीज, जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स, देन फैक्टोरियल ऑफ 2 नंबर्स, लाइकवाइज, ओके। और दे कैन आल्सो आस्क वेदर दैट करेक्ट कोड इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट। So that type of question will be also asked with respect to MCQ exam, okay? So homework क्या बताया था मैंने recursive function का? What is the homework? Write a program. GCD. So all of you do at your home that write a code for that. Now we will discuss the yesterday's code that I have given for homework. What is the code that I have given? क्या दिया था code? Use a variable length argument to add values, pass through function. Okay, variable length argument to add the values. Okay, तो क्या करना है हमें? सिंपल कर सकते हैं ना, def. Yes, sir. Def function. फॉर एग्जाम्पल एक ऐड नाम का फंक्शन ऐड करना है, ऐड नाम का फंक्शन मैंने किया, स्टार करके मैंने एक n नंबर लिया, ओके, n वेरिएबल लिया, ओके। डोंट व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सम करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा ना, यस और नो? Yes, sir. उसके बाद फॉर Yes, sir. आना ही पड़ेगा, i इन व्हाट n ना, Yes. then what you have to do, x is equal to s plus Is equal to s plus X is equal to S. i ना, क्लियर है? I. उसके बाद रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न S. s, क्लियर है? उसके बाद प्रिंट में क्या करेंगे, प्रिंट इन ब्रैकेट व्हाट आई हैव टू राइट, सम डबल कोट सम इक्वल टू, ओके। अभी यहाँ पे मेन चीज आ रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड। अब यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. कर सकते हैं. कर सकते ना, दैट इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना, व्हाट यू हैव मेंशन, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड values that are passed to by using variable argument that are passed to that specific function. So for example मैंने यहाँ पे 23, 22, 20 पास किया, whether this will execute, Yes, sir. whether this will be executed or not. So what is the answer for this? 65. 65 ना? Yes or no? 65. We will check. Clear है? Yes, sir. All of you clear with this? So यहाँ पे मैंने सिंगल वैल्यू किया तो भी क्या होगा, it will give you only what, 23 ना? 3. Yes or no? 20. Yes. Yes, sir. Yes. All of you clear with this? Yes, sir. हाँ? Clear है सबको? Variable length argument का प्रोग्राम clear है सबको? Yes, sir. Okay. Now take another problem statement. Write a program
write a program to return the full name of a person using function. To return the full name of a person. क्या करने को बोला है मैंने? रिटर्न करने के लिए बोला है. What you have to do? रिटर्न. Yes or no? फुल नेम मतलब वहां पे आपको वहां बीच में क्या आना चाहिए? स्पेस. Yes or no? क्लियर है? Yes, हाँ. और ये प्रोग्राम किससे करना है आपको? फंक्शन के करना है, फंक्शन के साथ करना है. राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न अ फुल नेम ऑफ अ पर्सन यूजिंग फंक्शन. ऑल ऑफ यू क्लियर? 4-5 लाइन का कोड है, सिंपल कोड है. और दूसरा कोड क्या दिया मैंने? व्हाट आई हैव गिवन? GCD of numbers. यस यस यस. और एक स्टेटमेंट लिखो प्रैक्टिस के लिए, वो ऑलरेडी आपने करके रखा है, सिंपल है. राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन. राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन. कर सकते हैं ये भी, जो ऑलरेडी हमने असाइनमेंट नंबर 1 में देखा है. सिंपली आपको उसको क्या करना है? फंक्शन में. यस, फंक्शन के अंदर डालना है आपको और उसको एग्जीक्यूट करना है. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द होमवर्क दैट आई हैव गिवन? यस सर. और एक बात याद रखनी है आपको, ये सारे जितने भी होमवर्क मैंने अभी तक आपको दिए, ऑल दैट आई विल चेक आफ्टर योर कॉलेज फिजिकली रेज्यूम. उसके बाद ही आपका सबमिशन मतलब आपका टर्म ग्रांट का साइन मिला, टर्म एंड का ग्रांट का साइन आपको मिलेगा. अदरवाइज यू विल नॉट गेट द टर्म ग्रांट साइन. टर्म ग्रांट साइन मींस व्हाट? एक फॉर्म होता है, इन दैट फॉर्म ऑल सब्जेक्ट्स are mentioned and all the activities regarding that subject will be mentioned. For example, assignments are there, unit test is there, prelim is there. If unit test is fail, you have to again give the re-prelim. Likewise, all things will be available on that form. So जो सारी चीजें होंगी तभी आपको क्या होगा? टर्म ग्रांट मिलेगा. Yes or no? Yes or no? Yes. So all of you do the homework. मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हर एक का चेक करने के लिए. रैंडमली मैं किसी को पूछता हूँ यहाँ पे, so that you have to explain that specific code. पर आपको करना ही है. होमवर्क क्या है? 2-4 5-5 लाइन का कोड होता है. आज ही मैंने 3 कोड दिए. जनरली 1 या 2 कोड देता हूँ मैं. ऑल ऑफ यू क्लियर? और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपको दे रहा हूँ, उसकी आपकी हैबिट हो जाएगी. आपको प्रोग्राम के मतलब सिंपल, जैसे वेरिएबल लेंथ का प्रोग्राम आपको दिया था, वो आपको वहां पे आपने यूज किया है अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके. नॉर्मल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैंने किया था, आपको एक प्रोग्राम वहां पे एक्सप्लेन किया था. जैसे रिकर्सिव का मैंने एक करके दिखाया. आपने अभी यहाँ पे आपने एक सॉल्व करके दिया और एक होमवर्क के लिए दिया. सो लाइकवाइज यू कैन प्रैक्टिस इट, देन यू विल गेट फैमिलियर विद द प्रोग्रामिंग. क्योंकि 4 साल आपको वही करना है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. और एक चीज होती है, सेकंड सेम में आपको प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं कोई. आपको यहाँ पे फर्स्ट सेम में पीपीएस पढ़ रहे हैं आप, ओके, सेकंड सेम में कोई तो आपको अगेन वहां पे गैप होगा. तो यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ, जनरली सेकंड सेम में आप क्या करो, सिंपली ट्राई करो, एक 2 कोड ट्राई करके करना है आपको. एज व्हेन यू आर फ्री, जो भी टाइम आपको निकलना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर यू हैव टू गिव फॉर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट. बिकॉज आपको 4 years and after your career also you have to do it in your programming itself. You have to write the program, write to code, you have to develop the softwares. Okay, खुद का स्टार्टअप भी होगा तो you have to develop yourself. तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करना है, मस्ट ही है. तो सेकंड सेम में भी नहीं होगा, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं आपके सिलेबस में, स्टिल यू हैव टू डू. जैसे अभी बेसिक पाइथन सीख रहे, तो यू कैन ट्राई फॉर एडवांस पाइथन. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? हेलो? Yes, sir. Okay, so give your attendance. Roll number 1. Present, sir. Present sir. 2. Yes. Present. E और D ऐसे बोलना है आपको. 2. Present. Yes. 3. E present. 4. D present. Okay. 5. D present. E present. Okay. 6. D present. E present. Okay. 7. D present. Okay. D present. 8. D present. E present. Okay. 9. D present. Okay. 10. D E present. present. E Okay. present. D present. 11. D present. Okay. E present. 11. Okay. 12. Roll number 12. E present, sir. E present. Okay. 13 D में तो नहीं है. E of 13, yes, present. 14. E present. D present. 15. E present. D present.
Okay. 16. D present. D present. Okay. 17. Present. D present. 18. 18. D present. E Okay. 19. D present. D Okay. present. 20. D present. Okay. D present. 21. 21. D present. 22. D present. E 20. 23. D present. Okay. 24. E present. D present. 25. D present. Okay. 26. D present. 27. 27. E present. D present. Okay. Okay. 28. D present. Okay. 29. D present. Okay. 30. 30. 30. D present. E Okay. present. 31. E D present. Okay. 32. E D present. present. Okay. 32. 33. D present. 34. D present. Okay. 35. D present. E D present. 36. D present. 37. Be present, sir. E present. 38. D present. E Okay. 39. E absent, I think. 39 E. D present. Okay. 39 E absent. 40. D present. E 41. 41. D present. 42. E present. 43. E present. 43 D. नहीं. Okay. 43 D absent. नहीं है 44. E present. 45. D present. 46. Present. E present. 47. E present. D present. 48. E 48. present. D present. E present. 49. E present. Present. 50. 50. E present. 50. 51. D present. 52. E present. 53. D present. 53. D present. E present. Yes, 54. D present. 55. D present. E present. 56. 56. D present. E present. 57. D 57. D present. D 58. present. 59. E present. 59. 58 D present. 59 D. 59 D. Okay. 60. 60. 60. Okay. 61. E present. D present. 62. D present. 62. D present. 63. E present. E present. 64. 63 D present. Yes, E 64. present. 65. E present. 67. D present. 66. E present. D present. 68. Sir 67. 67. 67 D present. 68. E present. 69. 69. D E present. present. Okay. E present. 70. D 70. present. Okay. 71. E present. D present. Okay. 72. D E present. 73 E. Present, sir. 73. Okay. So option number 39 of E and 60 of E and D. Correct? E present 60. E present 60. Okay. D 60 absent. Okay. So okay. Thank you. We will stop here. Okay. सर सर वो जो आपने असाइनमेंट दिया है उसमें अगर हमने पीडीएफ में डिजिटली ऑप्शंस को टिक मार्क किया तो चलेगा क्या? Means what? डायरेक्टली पीडीएफ पे टिक करेंगे सर. हाँ सर. सर लिखना पीडीएफ एडिट करेंगे सर डायरेक्टली. क्या पीडीएफ डायरेक्टली एडिट करेंगे सर. Which PDF? वो आपने असाइनमेंट दिया था ना. हाँ, क्यों एडिट करना है पर उसको? सर मतलब उसके वो ऑप्शंस पे ना ऐसे टिक मार्क कैसे प्रिंट डाल सकते सर? कर सकते हैं आप. हाँ, आपको जो करना है वैसे कर सकते. नो प्रॉब्लम. ओके सर. असाइनमेंट आपके एमसीक्यू बोल रहे हैं ना? एमसीक्यू का असाइनमेंट ना? यस सर. यस सर. यू कैन. यस. सर असाइनमेंट नंबर और कोर्स आउटकम क्या है उस असाइनमेंट का?
अरे उसका असाइनमेंट का कोर्स आउटकम नहीं है, वो एमसीक्यू है। जो आपका इसका होगा यूनिट नंबर 1 का जो कोर्स आउटकम है दैट इज सेम। और क्या है थ्योरी की जगह क्या है वहां पे एमसीक्यू है ना, सेम आउटकम ना। यस सर कोर्स नहीं, वो आउटकम actually- कितना अरे कंपलसरी है? एक बात याद रखनी है, दैट इज नॉट योर असाइनमेंट। ओके सर। हेलो। दैट इज नॉट योर असाइनमेंट, दैट इज योर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने वहां पे आपको बोला है यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू अपलोड इट। यस और नो? सर हाँ सर D59 प्रेजेंट है, वो नेटवर्क इशू था मेरा। नहीं, D59 का लगाया मैंने। सर E21 भी प्रेजेंट है, कनेक्शन वो लगाया मैंने, सिर्फ 39 और ई का 60 एब्सेंट है ना, ई का 60। यस सर वो सारे एक डाउट हाँ सर, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स में एक डाउट था मुझे। बोलो ना। वो आपने जो एग्जीक्यूट किया ना, उसमें हेलो वर्ड क्यों नहीं प्रिंट हुआ? कहाँ पे रे? आपने वो एग्जीक्यूट किया था ना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग का, तो वो मल्टी लाइन कमेंट के नीचे प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी था, तो वो एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हाँ ये वाला क्या? हाँ, उसमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट हुआ? सर हुआ था ना? यस नहीं सर हुआ इन था। द सेम लाइन नहीं हुआ था। नहीं हुआ सर था। वो पढ़िए। नहीं हुआ था। फंक्शन को कॉल नहीं स्ट्रिंग चेक करते हैं, एक मिनट, फंक्शन को 1 मिनिट। डी डिव्हिजन 1 आणि ई डिव्हिजन 1 हाँ एक ऑप्शन। हाँ यहाँ पे बोल रहे ना आप, ये वाला ना? हाँ हाँ वहीं पे check, उसके ऊपर वाला। यस यस। यहाँ पे कमेंट डाला है हमने ना। यस सर फंक्शन हेलो को वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ। फंक्शन प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखा है हमने? प्रिंट हेलो वर्ड। ओके सर वो नहीं होना चाहिए प्रिंट। हाँ ना, वही तो बराबर है ना। यहाँ वो पे क्या पूछ प्रिंट किया हमने? व्हाट हैव प्रिंटेड? क्या किया यहाँ पे? क्या लिखा है? फंक्शन क्या लिखा है? डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। फंक्शन का एक एट्रीब्यूट पास किया है ना मैंने यहाँ पे। यस और नो? ओके तो वो एट्रीब्यूट का वो एट्रीब्यूट क्या है? डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग मतलब क्या है? वो हमारा जो कमेंट वाला पार्ट अंदर डाला है दैट यू हैव टू डिस्प्ले। तो फंक डॉट करके जो एट्रीब्यूट हमने ये लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है ना। यस और नो? क्लियर है? यस सर, समझा। हाँ सर प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा फिर? अरे ते प्रोग्राम तो करू की आपण, मग ते करायचंच की आपलं, ते असं करणार ना, ते पाहिजे असेल तर ते असं करतो ना आपण, प्रिंट नाही डायरेक्टली प्रिंट करणार ना, डायरेक्टली कॉल। हा डायरेक्टली कॉल वर का लिहिलं मग? अरे प्रोग्राम कशाचा आहे आपला? प्रोग्राम कशासाठी केलाय आपण? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करण्यासाठी ना। सर्व फंक्शन हा यस फंक्शन। संस्कृती प्रोग्राम कशासाठी केलेला आहे? तो डॉक्युमेंटेशन स्ट्रिंग हाँ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करा। हे काय आहे? हा एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना, हा वाला एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना, हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी टाकलं होतं बस, कळलं का? नॉर्मली कमेंट टाकताना तशा फंक्शन मध्ये कमेंट टाकतो, बाकी काय नाही। हा हेल्प फंक्शन यूज करून सांगा ना त्यांना, कळेल। काय? हेल्प फंक्शन कोणतं हेल्प फंक्शन? ते पायथनचं इनबिल्ट असतं ना हेल्प वालं। हा ते मॉड्यूल मध्ये घेणार आहे ना आपण। हा मग तसं मॉड्यूल कळेल मध्ये त्यांना। हा मॉड्यूल मध्ये आपण नाही का सगळे फंक्शन घेणार आहेत। डॉट हेल्प सिक्स फंक्शन आहे, नंतर मॅथ फंक्शन आहे, मॉड्यूल आहे, सगळे मॉड्यूल घेणार आहे आपण, कंडक्ट करणार तेव्हा सर ये प्रोग्राम नोटबुक में लिखने हैं सारे? हाँ सर ये प्रोग्राम सारे नोटबुक में लिखने? नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे वैसे है ना, मतलब रिकॉर्डिंग में तो लिखा है, मैं आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एज पर योर चॉइस। मैं चेक क्या करने वाला आपको? होमवर्क। जितना भी होमवर्क मैंने अभी तक दिया है दैट आई विल चेक। ओके, पर आपको ये लिखना ही होगा ना रे, क्योंकि जो आप ठीक है आपको आता है तो ठीक है, तो जो दोज हु आर गेट डिफिकल्ट वो लिख ले, मतलब दोज आर राइटिंग ना। यस और नो? सर आपको जुपिटर नोटबुक दे दूंगा मैं। यस यस यस, सो क्लियर है? विल स्टॉप। अरे लेक्चर नहीं करना क्या आपको? सेकंड लेक्चर कितना टाइम हो गया? 10:48 ना? यस सो join for that lecture. Okay. Thank you, sir. Okay.